Now I'm starting structure of chromosome, cell cycle and cell division. Cell division is one of the most fundamental characteristic of life. This is the method which enable life to perpetuate generation after generation. This is equally true in the case of simplest organism like amoeba as in the highly complex ones such as ourselves or the giant-sized elephant or the tall coconut tree. The most conspicuous event occurring during cell division are all related to chromosomes. तो सेल डिवीज़न क्या है? पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स का बनना सेल डिवीज़न कहलाता है, चाहे वो कोई भी प्लांट सेल हो, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर हो या एनिमल हो. और द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम गेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द डॉटर सेल ड्यूरिंग माइटोसिस. Thus, all body cells that are the result of a long chain of repeated mitotic division have the same type of chromosome in the same number. This ensures the normal functioning of the cell and through that the life of an organism. तो किसी भी स्पीशीज़ में क्रोमोसोम का नंबर फिक्स होता है. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग कहीं के भी ले, इंग्लैंड के, अमेरिका के, इंडिया के, उनमें 23 पेयर क्रोमोसोम्स ही होंगे. क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दे ट्रांसमिट द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. तो क्रोमोसोम ही हैं जो सेल डिवीज़न में अपनी फ़ोटोकॉपी डुप्लीकेट करके, रेप्लिकेट करके डॉटर सेल्स में सेंड करते हैं. तो व्हाट आर क्रोमोसोम्स? When a normal unstained living cell is observed under a light microscope, its nucleus may not appear to contain any particular things inside. But when the same cell is stained with a suitable dye, several structures become noticeable in the nucleus. The nucleus contains most of the cell DNA, which is organized into discrete units called chromosomes. So chromosomes are thread-like structures. They are made up from DNA, deoxyribonucleic acid, and genes are located on DNA. Gene carry the character. जीन इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी. फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही जीन पे कई कैरेक्टर हो सकते हैं और एक ही कैरेक्टर को कई जीन मिलकर कंट्रोल कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी स्किन का कलर कई जीन मिलकर कंट्रोल करते हैं. ईच क्रोमोसोम कंटेन वन लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद मैनी प्रोटीन. दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन इज़ कॉल्ड क्रोमेटिन. तो न्यूक्लियस में जो स्ट्रक्चर होता है थ्रेड लाइक काफ़ी उलझा हुआ पड़ा होता है, उसे हम क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं. और ये बना होता है क्रोमोसोम्स से. क्रोमोसोम्स डीएनए से बने होते हैं एंड जीन्स आर लोकेटेड ऑन डीएनए. व्हेन अ सेल इज नॉट डिवाइडिंग द क्रोमेटिन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अपीयर टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी लॉन्ग एंड एक्सट्रीमली थिन डार्कली स्टेन्ड फाइबर. हाउएवर, as a cell prepared to divide, the chromatin fiber coil and condense further, eventually becoming thick enough to be distinguished as separate chromosome. तो जब सेल डिवीज़न स्टार्ट करती है तो उस समय क्रोमेटिन फाइबर सेपरेट आउट हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स की फॉर्म में नज़र आने लगते हैं. These chromosomes then readily pick up certain dyes and get colored. Hence the number name chromosomes मीन्स क्रोमा मीन्स कलर, सोमा मीन्स बॉडी. तो वॉल्डेयर ने क्रोमोसोम टर्म दिया था क्योंकि उन्होंने जब इससे स्टेन किया न्यूक्लियस को तो उन्हें कुछ कलर्ड स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे. क्रोमा मीन्स कलर, सोमा मीन्स बॉडी, तो इसलिए उन्होंने इसको नेम दिया क्रोमोसोम. क्रोमोसोम्स आर हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड क्रोमेटिन फाइबर. ये इतने सुपर कॉइलिंग है इसमें कि अगर हम क्रोमोसोम के एक थ्रेड को सन तक ले जाए फिर वापस ले आए तो इतना एक क्रोमोसोम में सुपर कॉइलिंग होती है, इतनी इसकी लेंथ होती है. Now I am talking about discovery of chromosomes. Chromosome in animals were first studied in 1882 by German scientist Walter Fleming. He noticed that in the rapidly dividing cell of the larva of salamander, that is an amphibian, the microscope he was used was of old type, and though he saw minute thread that appeared to be dividing lengthwise. Fleming called their division mitosis, literally meaning thread. Subsequently, with the help of most powerful microscope and by using a special technique, the chromosome and their constituent has been studied in great detail. तो क्रोमोसोम्स के बेस पे जो है सेल डिवीज़न को बताया गया है. सेल डिवीज़न इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. सबसे सिंपल होता है एमाइटोसिस. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अमीबा, इसमें साइटोप्लाज्म लगभग इक्वल डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियस डबल शेप होकर डिवाइड कर जाता है, 1 से 2 डॉटर अमीबा बन जाते हैं. दूसरा होता है माइटोसिस. माइटोसिस अकर्स इन सोमेटिक सेल्स मीन्स बॉडी सेल्स.
माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीज़न है जो हमारी बॉडी सेल्स में होता है, जो हमारी लाइफ टाइम में तो रहती हैं लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाती। फॉर एग्जांपल हमारे लिम्स की, हाथ पैर की सेल्स, हमारी स्किन जो पूरी बनी है, हम छोटे से बड़े हुए हैं, जो हमारी ग्रोथ हुई है वो माइटोसिस से हुई है। माइटोसिस जो है वो उसमें एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। थर्ड वन इज़ मियोसिस, जो तीसरा सेल डिवीज़न है। मियोसिस अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स जो स्पर्म और एग बनते हैं, ओवम बनते हैं, गैमेट्स यानी सेक्स सेल। प्लांट के केस में अगर हम बात करें तो पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल वो बनते हैं मियोसिस से। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ। मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन। एंड इन केस ऑफ मियोसिस 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, जबकि इन केस ऑफ माइटोसिस ओनली 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड एंड क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। माइटोसिस में क्रोमोसोम्स का नंबर वही रहता है, पेरेंट सेल में जो होता है वही डॉटर सेल्स में रहता है, 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ पेरेंट सेल हैव 10 क्रोमोसोम देन 2 डॉटर सेल, ईच डॉटर सेल हैव 10 क्रोमोसोम्स। इसी तरह से अगर मियोसिस होगी रिप्रोडक्टिव वाली, तो अगर पेरेंट सेल में 10 डॉटर सेल्स होंगी तो जो 4 डॉटर सेल्स बनेंगी उन सब में 5 क्रोमोसोम होंगे। Now I'm talking about chromatin. The chromatin material that constitute the fiber is formed of 2 substances. Number 1 DNA, that is deoxyribonucleic acid, about 40%, and second one is histone, a particular type of protein, about 60%. तो अगर हम बात करें chromatin material किसका बना होता है तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, DNA and histone proteins. Now I'm starting structure of chromosome, cell cycle and cell division. Cell division is one of the most fundamental characteristic of life. This is the method which enable life to perpetuate generation after generation. This